اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آخری بات ہم نے آیت نمبر 99 پر چھوڑی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یقیناً آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام روشن آیات آ چکی ہیں، جن کے ذریعے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے کھل چکے ہیں، پھر چاہے وہ یہودی ہو، پھر چاہے وہ عیسائی ہوں، یا پھر چاہے وہ نصرانی ہوں یا مشرک ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں مزید فرما رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلسل پچھلے 7-8-9 رکوعوں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہی چل رہا ہے، اور اب تک آپ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہوگا۔ تو آیت نمبر 100 ہے آج کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اوَكُلَّمَا جب بھی کبھی عَاهَدُوا عَهْدًا ان سے کوئی بھی عہد لیا گیا، نبذہ فریق منہم تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو ایسے پھینک دیا یا ایسے توڑ دیا جیسے کہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو یہاں پر جو نبذہ لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت ہلکے میں لے لینا، بہت لائٹلی لے لینا، یعنی کہ اس کی اہمیت ہی نہ سمجھنا، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک یہاں پر اظہار تعجب کر رہے ہیں، تعجب میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جب بھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یعنی کہ ان بنی اسرائیل کی تمام تاریخ جو ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے سے، اگر ہم دیکھیں، کیونکہ یہ آیات یہاں پر بنی اسرائیل کی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی 1-2 کلاسز میں انشاءاللہ یہ پوری بنی اسرائیل کا جو بھی قصہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ پچھلے 9 رکوعوں سے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آج ابھی کا عہد توڑا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے اسے بہت ہلکا اور حقیر سمجھ کر توڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثریت ایسی تھی کہ ایمان ہی نہیں لاتی تھی، وہ مومن تھے ہی نہیں، ان کے اندر وہ ایمان تھا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریسلی لیتے، انہیں تھام کر رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب بھی ان کے پاس رسول آیا خاص اللہ کی طرف سے، یہاں پر رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عہد ابھی توڑا ہے، ابھی رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی سنت رہی ہے شروع سے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا مصدق لما معہم، جو تصدیق بیان کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، معہم یعنی کہ ان کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ان کے پاس تھا، بلکہ جو ان کے پاس معہم ابھی بھی موجود ہے، یعنی توریت کی تصدیق بیان کرتا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو نبذ کے بارے میں ہم پیچھے بھی بات کر آئے ہیں، یعنی کسی چیز کو حقارت سے یا کم جان کر، اس کی اہمیت نہ سمجھ کر اسے پیچھے چھوڑ دینا۔ تو نبذ فریق من الذین، ان میں سے ایک فریق نے پیچھے سے چھوڑ دیا اوت الکتاب، کتاب کو، جو کتاب انہیں دی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ اوت الکتاب کو نوٹ کر لیں، ایک لفظ آتا ہے آتینا، ہم نے عطا کیا، ٹھیک ہے، آتینا، یہاں پر یہ جو ہم ہے، یہ یہاں سے اس میں مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں آتینا الکتاب، ہم نے کتاب عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ خود کو فاعل کی صورت میں رکھتے ہیں کہ وہ میں نے انہیں کتاب دی تھی۔ یہاں پر اوت الکتاب ہے، انہیں کتاب دی گئی، یہاں پر فاعل محذوف ہے، یا یوں سمجھے کہ یہ مجہول کے سیغے میں ہے، جیسے ایکٹیو اور پیسو وائس ہوتے ہیں۔ یہاں پر اوت الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نکال دیا ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نکال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کوئی ایسی بات کریں گے جو اچھی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بہت برا تھا، اور وہ برا کام کیا تھا کہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ جب ان میں سے ایک فریق کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یہاں پر خاص ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب دی گئی تو ایک فریق نے اس کو پیچھے پھینک دیا،
वराअ ज़ुहूरिहिम, अपने पीठ पीछे। यानी कि यूँ समझें जैसे हम शॉपर होती है, गंद होता है, हम उसको पीछे फेंक कर छोड़ देते हैं और पीछे देखते भी नहीं कि उसका क्या बना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बनी इसराइल को जब भी उनके पास रसूल आया अल्लाह की तरफ से, ख़ास उनके उनके पास जो था, यानी उनके पास जो किताबें थी उसकी तस्दीक करने वाले, तो उनमें से एक फरीक ने अल्लाह की किताब को, जो अल्लाह ताला ने उन्हें किताबें दी थी, अल्लाह की किताब को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, जैसे कि वो जानते ही नहीं थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा लिअन्नहुम, यानी कि वो जाने, ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं थे। कअन्नहुम, बल्कि मुशाबिहत दी अल्लाह ताला ने, ऐसे फेंका जैसे जानते ही नहीं थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि इस किताब में है क्या, इस किताब की अजमत क्या है, इस किताब में हिदायत क्या है, ये किताब हमें कौन सा रास्ता दिखाती है, इस किताब में हमारे लिए कितने फ़वाइद हैं, अगर हम इसको थाम के रखें, अगर हम इस पर अमल करें, अगर हम इसको समझें। तो उन्होंने इस किताब को ऐसे पीठ पीछे फेंक दिया गोया कि जानते ही नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा काम था जो बनी इसराइल ने किया था। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो उस चीज़ की तस्दीक बयान करता है जो उनके पास है, तो उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया गोया वो जानते ही नहीं। और आयत नंबर 102 में बताया गया कि जब उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, यानी उसे बहुत मामूली करार दिया, जब उससे उन्होंने कोई अहमियत ना दी अल्लाह ताला की किताब को, तो वो किन चीज़ों में लग गए। देखें, आज हम उम्मत मुस्लिमा हैं, हमें भी अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब मिली है जो हमारे पास वाहिद और आखिरी, पहला और आखिरी मौजज़ा है, और वो किताब हमें अल्लाह ताला से जोड़ती है, वो कलामुल्लाह है। अगर हम अल्लाह ताला की किताब को अहमियत देते हैं, अगर हम उसको संभाल कर रखते हैं, संभाल कर रखने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे घरों में पड़ी रहे, बल्कि हम उसे खोलते हैं, उसे सीखते हैं, उसे समझते हैं, उसे वक्त देते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हमारा हाल बनी इसराइल की तरह नहीं होना चाहिए। बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की किताब को पीठ देकर पीछे फेंक दिया और ये भी नहीं देखा कि इसमें है क्या, कौन से हिदायत के मोती इसमें हमें मिलेंगे, कैसे हम इस किताब के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, कैसे हम इस किताब के ज़रिए दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने क्या किया, किताब को पीछे जब उन्होंने छोड़ा, तो फिर वत्तबऊ, वो पैरवी करने लगे, मा तत्लु शयातीन, जो शयातीन पढ़ा करते थे, यानी जो शयातीन सिखाते थे अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। अब यहाँ पर बनी इसराइल का, क्योंकि बनी इसराइल का जो किस्सा है वो अब ख़त्म होने को है, और अल्लाह ताला ने उनके बारे में हमें पहले भी बहुत कुछ बताया है, उनके पास्ट के बारे में, उनकी तारीख के बारे में। अब यहाँ पर यूँ समझें कि ये लास्ट और सबसे बड़ा टॉपिक है जो हम बनी इसराइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि समझने के हवाले से या ईमान रखने के हवाले से या आंखें खोलने के हवाले से ये बहुत अहम है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे छोड़ दिया, जब रसूल वो लेकर आया और वो तस्दीक भी बयान करती थी, वो सच भी कहती थी उन किताबों की जो उनके पास थे, तब भी उन्होंने उसे कोई अहमियत नहीं दी। तो उन्होंने, और ये बात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अपने वक्त में जब उनके अंबिया उन्हीं में से आते थे, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में से आए, लेकिन जब अंबिया उन्हीं में से आते थे तब उनका हाल ये था। यानी कि यूँ समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, वैसे उन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर गुजर चुका है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और अंबिया और रसूल उनमें आते गए आते गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अब्बू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें आए, लेकिन शयातीन का गलबा या शयातीन के सिखाने का गलबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में उनमें ज़्यादा हुआ था। वो क्यों? आपको पता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में ऐसी बादशाही, ऐसी सल्तनत दी गई थी जो कि पहले किसी भी नबी को नहीं या किसी भी रसूल को नहीं दी गई थी। उन्हें अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों पर अख्तियारात दिए थे, हवाओं पर, चींटियों पर, कीड़ों मकोड़ों पर, परिंदों पर, इसी तरह शयातीन पर भी। यानी ये एक ऐसा दौर था जिसमें इंसान और
शयातीन आपस में बहुत ज़्यादा मेल जोल खाते थे, बहुत मिलते थे। तो जो शयातीन नुमा इंसान हैं या ऐसे इंसान जिनकी शयातीन से ज़्यादा लगती है या जिनके करतूत और हरकतें शयातीन सी हैं या जो अल्लाह ताला की किताब को पीट देते हैं, वो उनसे उस दौर में कुछ ज़्यादा ही मिलजुल गए थे और उस दौर में उन्होंने जादू किया था। यानी कि वो दौर था जब जादू अपने उरूज पर था, सही है, या रूहानी जो इल्म होता है, नुजूमी इल्म, वो अपने उरूज पर था। और तब उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को भी बिल्कुल एक आम सी चीज़ समझकर या कोई अहमियत ना देकर पीछे छोड़ दिया था। वो उनके पास थी, उन्हें पता था ये ख़ास है, ये आसमानों से आई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उन्होंने उसे कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं वत्तबअू मा तत्लु शयातीन, वो पैरवी करने लगे उसकी जो शयातीन पढ़ा करते थे अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। वमा कफर सुलेमान, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था। यहाँ पर एक चीज़ है जो आप नोट करेंगे कि अल्लाह ताला ने फ़ौरन से ही, यानी अभी तक वो बात चल रही थी कि वो शैतान क्या पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था, फ़ौरन से अल्लाह ताला ने पहले कह दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। क्योंकि देखें, अपने आप को सही करने के लिए या अपनी बुरे कामों को थोड़ा पाक दिखाने के लिए, एक अच्छा कवर चढ़ाने के लिए उन्होंने जो बात मशहूर की थी वो ये थी कि ये कुफ्र या ये जादू। अच्छा, यहाँ पर कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि जो शयातीन पढ़ते थे अभी वो क्या चीज़ है वो बताई नहीं गई है, ठीक है। तो फ़ौरन कुफ्र का लफ्ज़ आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई थी जो शैतान की चीज़ से रिलेटेड हो। और उनमें ये मशहूर था कि ये इल्म जो शयातीन उन्हें पढ़कर सुनाते थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, क्योंकि बाद में वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया था, उसे थोड़ा पाक का लेबल लगाने के लिए, ठीक है। और आज भी बहुत से यहूद में ये बात मशहूर है या जादूगरों में ये बात मशहूर है कि ये इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचा है, इसलिए ये दुरुस्त है और ये गलत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब में तस्दीक कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तौरात में जो वाज़े और वज़ाहत से कही गई थी, या यूँ समझें कि तहरीफ करके, चेंज करके कही गई थी, हज़रत सुलेमान के ऊपर जो झूठ गढ़ा गया था उसको इस कुरान ने आकर दुरुस्त कर दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, वलकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया था। और वो कुफ्र क्या था? युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र, वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं सिखाया, या फिर वमा सहर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा जादूगरी का कोई काम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने सहर को बयान करने से पहले ही उसे कुफ्र करार दे दिया। क्योंकि जादू करना, जादू टोने, इस तरह की झाड़ फूक और इस तरह की और चीज़ें, ये हमें कुफ्र तक ले जाती हैं। जब हम इन चीज़ों में लग जाते हैं ना, तब हम अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते, तब हमें उन तावीज़ों पर, उन फूकों पर या उन चीज़ों पर जो हम अपने ऊपर लटकाते हैं या पहनते हैं या पास रखते हैं, तब हमें उन चीज़ों पर यकीन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में खासकर इंडियन सीरियल्स होते हैं जो, उनमें एक चीज़ बचपन से हमें दिखाई जाती थी, नींबू लटकाते थे या जो हरी मिर्चें होती हैं वो अपने दरवाजे पर लटकाते थे, या इसी तरह दीवार में कुछ ठोंक कर उसके ऊपर धागे वगैरह बांध देते थे और कहते थे कि अब हमारा घर आफात से महफूज है। यानी उनको यकीन था कि अगर ये नींबू नीचे गिर गया या इसे खराब हो गया तो इसका मतलब है कि घर में कोई आफत आएगी। उन्हें उनके खुदा पर कोई ऐसा भरोसा नहीं था जितना उस नींबू मिर्ची पर था, सही है। तो ऐसी ही चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन लाए थे, वो भी तब जब अल्लाह की किताब को पीठ पीछे छोड़ दिया गया था, अहमियत नहीं दी गई थी, उसे पढ़ा नहीं जाता था, मतलब समझा नहीं जाता था कि इसमें है क्या, उसमें अमल नहीं किया जाता था। देखिए, जब हम एक चीज़ से खाली हो जाते हैं ना, खासकर अल्लाह के दिए गए इल्म से जब हम खाली हो जाते हैं, तब वो जगह कोई और चीज़ ले जाती है। और यहाँ पर भी जब अल्लाह ताला की किताब की जगह को हमने छोड़ दिया, या बनी इसराइल ने जब अल्लाह ताला की किताब की जगह को छोड़ दिया, तो उस वक्त शयातीन की जो सहर था, जो जादू था,
اس نے اللہ ताला की किताब की जगह ले ली। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते और अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं हो सकते, जिस तरह बुराई और नेकी एक साथ नहीं हो सकती लेकिन दोनों का वजूद है, इसी तरह एक चीज़ है अल्लाह ताला की हिदायत और एक चीज़ है शैतान का इल्म, ठीक है, शैतानी इल्म। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। अगर आपके दिल में अल्लाह ताला की किताब है, अगर आपके दिल में अल्लाह ताला की किताब की अहमियत है, उसकी समझ है, उसका तदब्बर है, गौर व फिक्र है, तो आपके दिल में शैतानी इल्म नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपने अल्लाह ताला की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, उसे कोई अहमियत ना दी, उसको अपनी ज़िंदगी का रहनमा किताब नहीं बनाई, तो फिर जादूगिरी आपके लिए आसान हो जाएगी और उसके रास्ते आसान हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह जैसे बनी इसराइल के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आया ये जादू आम हो गया था। तो युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्जिला अलल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत, और वमा उन्जिला अलल मलकैन बिबाबिल, और नाजिल किए गए थे उन पर दो फरिश्ते बाबिल में। ये जो बाबिल लफ्ज़ है ये आज का इराक है, ठीक है। आज के इराक को पुराने ज़माने में उसका जो नाम था वो बाबिल था। तो बाबिल में हारूत और मारूत अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते नाजिल किए थे। आपको पता है कि बनी इसराइल को बहुत सारे मौज़े दिखाए गए थे, तो फरिश्तों का उनके ऊपर नाजिल करना ये कोई अजब की बात नहीं है। आज हमारे वक्त में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ईमान बिल गैब की टेस्ट पर रखा गया है, यानी कि हमने बगैर देखे ही मानना और समझना है और अल्लाह की किताब को पढ़कर उस पर अमल करना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। जबकि बनी इसराइल में से अगर ऐसा कुछ होता था कि वो गुमराह हो जाते थे या कुछ गलत करने शुरू कर देते थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती थी जो उन्हें राह रास्त पर दिखाती थी या चलाती थी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उन्हें इस जादू से के असर को छोड़ने के लिए या इस जादू से दूर करने के लिए दो फरिश्ते नाजिल किए थे, और इराक में ही जिनका नाम था हारूत और मारूत। अब यहाँ पर ये बहस करनी इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में ही आए थे या फिर अपनी असल शक्ल में आए थे या इंसानी शक्ल में आए थे। अगर वो इंसानी शक्ल में आए थे तो ये तो ठीक है क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आया था, और अगर वो अपनी शक्ल में आए थे जो उनकी असल शक्ल थी, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ के ज़रिए किसी न किसी ज़रिए वो उन दोनों फरिश्तों से कनेक्ट रही हों, ठीक है। बात यहाँ पर बहस करने की ये नहीं है। असल बात ये है कि वमा उन्जिला, और जो नाजिल किया गया था अलल मलकैन, दो फरिश्तों पर, बाबिल बाबिल में, हारूत और मारूत के ऊपर। यानी एक चीज़ वो उस चीज़ के पीछे पड़ गए थे जो शयातीन पढ़कर सुनाते थे यानी कि जादू, और दूसरी चीज़ वो उस चीज़ के पीछे पड़ गए थे जो बाबिल में हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्या चीज़ थी जो बाबिल में हारूत और मारूत यानी कि दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। बहुत से उलमा ने इसकी तफसीर जादू लिखा है कि उन पर जादू नाजिल किया गया था, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनके लिए जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जो नाजिल किया गया। तो नाजिल अल्लाह ताला जो चीज़ें करता है वो खैर व बरकत के लिए होती हैं। ये बात थोड़ी अक्ल से मावरा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों पर जादू नाजिल करे और उस जादू के ज़रिए वो फरिश्ते आएँ और उन्हें सिखाएँ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको तदब्बुर कुरान की तफसीर में कुछ इस तरह वाज़ी किया गया है कि हो सकता है कि दो फरिश्तों को वो चीज़ें दी गई हों, वो इल्म, वो कलमात, वो अल्फाज जो जादू का असर रखते हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। आपको पता है कि जब बनी इसराइल में से एक शख्स ने, यानी यहूद के ही एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके बालों पर जादू किया था, और उस जादू के असर को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नाजिल की थी, और उन दोनों सूरतों ने एक 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 तरह से जादू का असर किया था, यानी कि वो जो जादू का जो असर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो असल में हटा दिया था। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर मुअव्विज़तैन पढ़ने का हुक्म दे दिया हर नमाज के बाद या सुबह शाम के अज़कार में आपको वो मिलेंगे। तो फरिश्तों पर भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म नाजिल किया हो
जो जादू का सा असर रखता है, जो जादू के असर को तोड़ता है, यानी कि उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे और उन्हें एक खास इल्म दिया। तो वो कुछ इस तरह का इल्म था कि उसमें जादू का सा असर था। हाँ, वो जादू नहीं था, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की शान नहीं है कि वो फरिश्तों को जादू देकर नीचे भेजे, जिसको अल्लाह ताला ने खुद कुफ्र करार दिया है। और फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, उनमें से, उन दोनों में से कोई एक भी उनको नहीं सिखाता था वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो दोनों कहें, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम फितना हैं। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है फितना, इसको भी आप नोट कर दें कि फितना कहा जाता है आजमाइश को, यानी कि वो दोनों जो सिखाते थे वो यहाँ तक नहीं सिखाते थे जब तक वो उन्हें ये ना कह दें कि हम तुम्हारे लिए फितना बनाकर भेजे गए हैं। फितना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। आपको पता है हमारे यहाँ माल, औलाद, औरतें, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने फितना करार दी हैं, क्योंकि इनमें नफ़ा भी होता है और नुकसान भी। अगर माल को, औलाद को या औरतों को हम अच्छे तरह से इस्तेमाल करें, अल्लाह के बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए दुनिया और आखिरत में खैर का बायस बन सकती हैं। लेकिन अगर इन्हीं तीनों चीज़ों को हम गलत इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नुकसान भी हो सकती हैं और हमारे लिए जहन्नुम में जाने का ज़रिया भी बन सकती हैं। तो फितना एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। और वो दोनों फरिश्ते कहते थे, दोनों में से, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक सिखा देता था, बल्कि दोनों में से हर एक कहता था कि हम तुम्हारे लिए फितना हैं, यानी कि ये चीज़ जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं इससे तुम शर भी हासिल कर सकते हो और खैर भी हासिल कर सकते हो। और साथ साथ ये तंबीह भी करते थे, फला तकफुर, बस तुम कुफ्र ना करना, यानी इनको गलत इस्तेमाल ना करना, यानी कि शैतान के असर को तोड़ने के लिए भी वो इल्म इस्तेमाल हो सकता था जो 2 फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ले आए थे। वो क्या चीज़ थी उसको वाज़े नहीं किया गया। और अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़यतअल्लमून, वो सीखते थे, मिनहुमा, उन दोनों से, मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, जो फ़र्क डालता था 2 जोड़ों के दरमियान, यानी घर वाले और घरवाली के दरमियान, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान फ़र्क डालता था, उनमें जुदाई डालता था, घरों को तोड़वाता था। आपको पता है, अगर आपके इल्म में हो, तो शैतान के कामों में सबसे अहम काम इस दुनिया में तलाक करवाना है। अगर आपने इस हिसाब से अहादीस पढ़ी हों, कई सही अहादीस इस हिसाब से हमें मिलती हैं कि शयातीन जब अपने काम को निकलते हैं तो शैतान जब उनसे हाल अहवाल करते हैं कि बताओ तुमने आज क्या किया, तो शैतान उस अपने शैतानी साथी से खुश होता है जो मियाँ और बीवी में जुदाई डाल गया। क्योंकि आपको पता है कि इस मुआशरे में या इस दुनिया में, ख़ानदानी निज़ाम में, यानी ख़ानदान के हिसाब से मियाँ बीवी और उससे बच्चे, इस्लाम में यही ख़ानदान है, इसमें ये एक रिश्ता अहमियत का हामिल है और इसी रिश्ते से नस्लें आगे बढ़ती हैं, इसी रिश्ते से बच्चे परवान चढ़ते हैं। अगर इस रिश्ते को तोड़ा जाए तो यूँ समझे कि शैतान का बहुत काम आसान हो जाएगा। यही रिश्ता है जो इंसान को बुराइयों से, ज़िना से रोकता है, बाहर नज़र रखने से रोकता है, बुरी बातों से, बुरी ख्वाहिशात से रोकता है। तो जब शैतान वो काम इंसानों से करवाने लगे ना, तो यूँ समझे कि शैतान अपना काम इंसान के हाथों देकर खुद आराम से बैठ गया कि बस अब आगे ये खुद ही करेंगे। तो वो उन दोनों फरिश्तों से, जबकि वो फरिश्ते साफ कहते थे कि हम फितना है तुम्हारे लिए, बस तुम कुफ्र ना करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन फरिश्तों से वो चीज़ सीखते थे जो मियाँ और बीवी में तफरका डालती थी। अगर आपने थोड़ा बहुत इस दुनिया में गौर किया होगा तो जो पीर बाबों के पास जाते हैं या इस तरह से कुछ ऐसा झाड़ फूक करने वालों के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जो पाम रीडर्स होते हैं, हाथ के पढ़ने वाले, इस तरह के लोगों के पास जो लोग जाते हैं, उनका असल मकसद ही यही होता है, फलां लड़की मुझे मिल जाए, फलां का रिश्ता हो जाए, मेरी मोहब्बत उसके दिल में चली जाए, उन दोनों में जुदाई हो जाए, और मतलब इस तरह की बहुत सी बातें। और ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, ये और भी कई जगहों पर है, यानी कि आपको न्यूयॉर्क या इस तरह के जो भी और ममालिक हैं बाहर, वहाँ पर भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे और बहुत पढ़े लिखे लोग
वेल सेटल बहुत से लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे जो इन तमाम चीज़ों में फंस चुके हैं या अभी भी फंसे हुए हैं। आप थोड़ी तहकीक कीजिएगा, अक्सर आपको यही मसला मिलेगा यहाँ पर। तो अगर हम चाहते या उस वक्त में जो लोग थे अगर वो चाहते तो इसी इल्म को भलाई के लिए, मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो इस इल्म को नफ़रत के लिए इस्तेमाल करते थे, आपस में जुदाई डालना, घरों को तोड़ना। और अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन, उनमें से किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता था इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह के हुक्म से। यानी कि ये जान रखो कि अगर इस चीज़ से नुकसान भी होता है तो वो नुकसान भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो नुकसान देकर अल्लाह ताला किसी का ईमान टेस्ट करता है और किसी का अल्लाह ताला कुफ्र टेस्ट करते हैं कि कौन कुफ्र करता है, कौन सब्र करता है, कौन अल्लाह ताला को याद करता है। क्योंकि जो लोग खुद जादू नहीं करते लेकिन जादू के असर के तहत आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस असर के तहत आ गए थे, उन पर थोड़ा बहुत असर उनके जिस्मानी हिसाब से हुआ था। हाँ, उनकी नबूवत और उनके अकीदे पे कोई असर नहीं हुआ था। तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से थोड़ा बहुत जो उन्होंने महसूस किया था और अल्लाह ताला से मदद मांगी थी और अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आ गई थी। तो ये सब अल्लाह ताला के ही हाथ में होता है। अगर अल्लाह ताला की कोई मजलूम है, यानी उसने कोई खुद जादू नहीं किया लेकिन उस पर जादू करवाया गया, आपको और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे यहाँ पर जो ये शिकायत करते हैं कि मुझे फलां कोई करवाता है, या यकीन के बेसिस पर या कैसे भी शक के बेसिस पर, और वो परेशान होते हैं। तो असल में अल्लाह उनका ईमान टेस्ट करता है कि उसको मुझ पर कितना यकीन है, उसको जादू पर या जादू करवाने वाले से डर लगता है या अल्लाह ताला की रहमत से उसे ज़्यादा उम्मीद है। तो अल्लाह ताला दोनों को आज़माता है, जो जादू करता है उसको भी आज़माता है और जिस पर किया जाता है उसको भी अल्लाह आज़माता है। एक का कुफ्र तो दूसरे का ईमान। अब देखना ये है कि इस हाल में हम क्या करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नुकसान नहीं होता था लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही होता था। वयतअल्लमून, और वो सीखते थे, मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, जो उन्हें नुकसान देता था, नफ़ा नहीं देता था। यानी कि खुद उन्हें जो जादू करते थे या ये सब चीज़ें सीखते थे, जुदाई डालना ये सब, तो उन्हें खुद नुकसान होता था। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या था? उनका सबसे बड़ा नुकसान ईमान जाना था, कि उनका अपना ईमान चला जाता था। इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है। तो देखें, इस जादू के फितने से, काला जादू हो या जिस तरह का भी जादू हो, झाड़ फूक हो या हम सोचते हैं कि ये कितना असर देता है। आपको अक्सरियत मुसलमानों की ही, बल्कि काफिर तो चलो ठीक है, अगर कुफार ऐसी चीज़ों में पड़ गए तो समझ में आता है क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला पर यकीन नहीं होता। लेकिन अगर हम मुसलमान ऐसी चीज़ों में पड़ गए और इनमें लग गए और हमें ये भी यकीन होता है कि ये चीज़ें असर देती हैं, यानी कि अगर आपने कुछ पहन कर उसको बांध दिया अपनी कलाई पर या अपने गले में, और आपको ये यकीन होता है कि ये जादू सा काम करेगा, तो शैतान का तो काम ही यही है, वो तो इस चीज़ में माहिर है। तो वो आपको अल्लाह ताला के यकीन को तुड़वाकर वो आपको उस चीज़ पर ज़्यादा यकीन दिलाता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ जो है इसी से मुझे शिफा मिली है, इसी से मुझे जॉब मिली है, इसी से मेरा रिश्ता हुआ है और इसी से फलां 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 कुछ हुआ है। तो फिर हमें अल्लाह ताला पर वो यकीन नहीं रहता। जब हम अल्लाह ताला की किताब को छोड़ देते हैं, अल्लाह के इल्म को छोड़ देते हैं, तो शैतान का इल्म हम पर हावी हो जाता है और वो जादू का सा काम करता है हमारे ऊपर। तो वहाँ पर आपने ताज्जुब नहीं करना कि हाँ ये कितना असर दे रहा है, बल्कि वहाँ पर अफ़सोस करना है कि शैतान के बहकावे में हम इतना आ गए कि हमें अपने अल्लाह पर भी यकीन ना रहा। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें उनका खुद का भी नुकसान होता है। जो इन चीज़ों में लग जाते हैं उनका ईमान उनसे चला जाता है। अब अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। वलक़द अलिमू, और वो जान चुके थे, लमन इश्तराहु, कि जो चीज़ें ये खरीदते हैं, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, तो उनके लिए आखिरत में कोई घर नहीं है। यानी कि जो शयातीन के कामों के पीछे लग गया, जादू के कामों के पीछे लग गया, दूसरों का घर तोड़ने के पीछे लग गया, अपनी मोहब्बत हासिल करने के पीछे लग गया, नफरत दिलों में डालने के पीछे लग गया,
या इस तरह की और चीज़ें, उसका ईमान अल्लाह को छोड़कर कुछ और मादी चीज़ों में आ गया कि अगर ये होगा तो ठीक होगा, ये नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा, इस तरह की बातों में आ गया। या उसके पास जाऊंगा, वो दुआ करेगा तो ही सब ठीक होगा, वरना सब ठीक नहीं होगा। अगर हम इस तरह की चीज़ों में पड़ गए, तो वो जान चुके थे उस वक्त इराक के लोग हारूत और मारूत से सीख कर कि अगर ये सब इन बातों में अगर वो इस फितने में पड़ गए, इस आजमाइश में पड़ गए, तो वो उनके लिए आखिरत में कोई घर नहीं होगा। उन्हें मालूम था, लेकिन फिर भी वो सब ये करते थे। और अल्लाह ताला यहाँ पर हसरत से कह रहे हैं, वलबिअस मा शरौ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम, और कितनी बुरी चीज है जो वो अपने लिए करते हैं, कितना बुरा काम है जो जिनको इन्होंने अख्तियार किया। लौ कानू यालमून, काश कि ये जानते, काश कि ये इल्म रखते। तो आखिर में अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को खुली आज़ादी दे रखी है। हम आसमान नहीं हैं, हम ज़मीन नहीं हैं कि अल्लाह ताला के कहने पर लब्बैक कर दें और फिर वहीं पर खामोश रहकर पूरी ज़िंदगी बिताएं। हमारे पास दो रास्ते शुरू से मौजूद है। हमारे पास कुफ्र का रास्ता भी है, हमारे पास ईमान का भी रास्ता है। ईमान हमें अल्लाह ताला की हिदायत, अल्लाह ताला के कलाम से मिलेगा, और कुफ्र हमें शैतानी कामों से मिलेगा। और अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं कि कितनी बुरी चीज़ें हैं जो जिनके पीछे ये लोग चले गए हैं अल्लाह को छोड़कर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से बचाएं, इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें, सही इल्म अता करें, सही फ़हम अता करें, ताकि हम इन चीज़ों के पीछे ना लगें और हमारा पूरा ईमान अल्लाह की किताब, अल्लाह की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात पर हो। आमीन। और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जिसे शैतान सुलेमान की बादशाह के दौर में पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया, लोगों को जादू सिखाते थे। और वो चीज़ जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो आजमाइश हैं, सो कुफ्र ना करो। फिर लोग उनसे वो चीज़ सीखते जिससे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे, और वो किसी को उसके ज़रिए नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह के हुक्म से। और वो लोग ऐसी चीज़ सीखते जो उनके लिए नुकसानदा होती और फ़ायदा ना देती, और यकीनन वो जानते थे कि जो कुछ उसको अख्तियार करेगा, जो कोई इसको अख्तियार करेगा, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और बहुत बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वो जानते।